alaikum everyone. Walaikum Assalam. Okay, Walaikum salam. so let's start the class today. What was the last topic in our last class? What was the last class topic? Do you all remember? या भूल गए आप? Yes, Fundamental rights. हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर चुके हैं और फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम? Article 12. आर्टिकल 12. सिर्फ एक को याद है कि आर्टिकल 12 हमने डिस्कस किया. What does Article 12 describes or what does it define? It defines Define state. It defines state. It defines state. So what is the criteria of deciding state for fundamental rights? किस केस में डिस्कस किया था हमने? What authorities are to be considered as state according to Article 12? Yes. Executive and legislative of union Good. and state, local authority and other authority. Yes. So Article 12 defines state as far as it is related or connected to fundamental rights or part 3 of the Constitution. Okay. So the next article which we are going to discuss today is Article 13. Article 13 says that Constitution is supreme. What does it say? It makes Constitution supreme. And how? It says, Article 13 says, all the laws should be consistent with Constitution. So, Article 13 को Constitution में incorporate किया गया था legislature के powers पर रोक लगाने के लिए कि legislature कोई ऐसे laws ना बना दे जो fundamental rights को violate करे. समझ आई आप लोगों को? Basically, Article 13 says कि Constitution supreme है और जितने भी laws बनेंगे वो तमाम laws जो है should be consistent with or in accordance with the Constitution of India. So basically, और Article 13 जो incorporate किया गया था वो एक तरह से legislature के powers पर रोक लगाने के लिए कि वो कोई ऐसे laws ना बना दे जो fundamental rights को abridge कर दे या violate करे. ठीक है? तो basically laws जो होते हैं laws are of two types. ठीक है? या laws को हम we can classify the laws into two parts or two types. For example, pre-constitutional law and post-constitutional laws. Article 13 clause 1 speaks about pre-constitutional laws. And Article 13 clause 2 speaks about post-constitutional laws. What are pre-constitutional laws? आप बता सकते हैं क्या pre-constitutional laws का मतलब क्या है? Madam, I guess this is before Constitution came into existence. Yes. Pre-constitutional laws ये वो laws हैं जो Constitution force में आने से पहले बनाए गए थे. अगर ये वो laws fundamental rights को violate करते हैं तो वो तमाम laws void हो जाएंगे. ठीक है? Article 13 clause 1 says that all the laws which came into force before the Constitution was prepared, and if they violate the fundamental rights, these laws can be declared
as void. ठीक है, समझ आई सबको? यानी आर्टिकल 13 का कहना ये है कि लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाए वो लॉज इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना जाए या इनकंसिस्टेंट हो जाए तो उन लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक तरह से इस आर्टिकल ने लेजिस्लेचर के पावर्स पर रोक लगाई है कि वो कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। तो फिर इसी डायरेक्शन में हम देखेंगे, हम लेट्स सी कि there are two the laws are classified into two types. Okay, pre-constitutional law, which is discussed under article 13 clause 1. Now it says कि वो laws, वो तमाम laws जो constitution force में आने से पहले बनाए गए थे, अगर वो fundamental rights को violate करते हैं तो वो laws void हो जाएंगे। उसी तरह आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। नाउ व्हाट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? वाइस वर्सा ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी वो लॉज जो लेजिस्लेचर बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के वजूद में आने के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जितने भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में डिस्कस किया गया है और इन्हें कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, जो स्टेट को ऐसे लॉज बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, मैं समझा पाई आप लोगों को? Am I Yes, clear? Yes, Yeah, ma'am. it's crystal clear. Does Article 13 exercise the power of judicial review over all the legislation in India? Yes or no? किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना? तो आर्टिकल 13 इस पावर, सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहेंगे, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट को डिफाइन किया, आर्टिकल 13 में हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी लॉ जो भी इंडिया में कानून बनाया जाएगा, it should be consistent with constitution or fundamental rights. They should not take away the fundamental rights or abridge the fundamental rights of the citizens or the people of India, or it should not be against the spirit of the constitution. Agar koi bhi law, any law, if is found against the constitution, or if it violates, or if they violate the fundamental rights, they shall be declared as null and void. And this declaration of the law as null and void is nothing but the power of judicial review exercised by the highest court of the land, which is Supreme Court. Am I clear? Yes. Yes or no? Yes, No. ma'am. Clear. Yes. If you will answer me, I will understand. We are making this class an interactive class. If you don't reply, how will I know that you are following or not following? Should I repeat again and again, or should I keep silence? What's happening? जागे हैं कि नहीं जागे हैं? बस ऐसे ही जाकर बैठ गए हैं क्लास पर? Yes, we are woke, ma'am. Okay, you all are awake. Oh, I hope so. So Article 13 has two important areas. अभी इसको तफसील में हम डिस्कस करते हैं. Let's discuss in detail.
Basically, Article 13 has two important areas. One area is called doctrine, and the other area is Article 368. What is Article 368? Which gives governor to amend the amendments To amend in the constitution. constitution. The parliament, the power of the parliament to amend the provisions or the laws. Okay. Yes. So when we are talking about, or when we are discussing Article 13, we also need to discuss it from two angles. One is called doctrine. There are two doctrines related to Article 13, or to understand Article 13 better. And also we need to discuss Article 368 to understand Article 13 better. Okay. So now first let's go to the doctrine area, the area of the doctrines. The first doctrine of Article 13 is called doctrine of eclipse. Kindly note down when I'm saying this, these are important doctrines. They might be asking you the questions. They will definitely ask you the power of judicial review also. They might ask you what is judicial review. So this is an important article from examination point of view also. So Article 13 has two important areas. One is doctrine and the other is Article 368 to be discussed in this direction. The first doctrine of Article 13 is doctrine of eclipse. So what is doctrine of eclipse? According to doctrine of eclipse, if any law is violative of fundamental rights or is inconsistent with fundamental rights, that law itself automatically doesn't end or doesn't become null and void. Only that problematic area will sleep as long as there is inconsistency. Once the inconsistency is removed through any amendment, the law becomes active again. मैं समझा पाई आप लोगों को? Yes, नहीं समझ आया? किसने कहा यस? बताओ मैंने क्या कहा? ma'am. If any law is violating the fundamental right, and the whole right will not be deleted, but only the part which is inconvenient or unconstitutional, inconsistent. Yeah, only that part will be removed, and it will not be removed. It will not be removed. It will be overshadowed by your fundamental rights, and it will sleep. Let me ठीक है, मैं हमारी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको. अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है या इनकंसिस्टेंट है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा. वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हद तक ओवरशैडो हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा. एक्लिप्स क्या होता है? व्हाट इज एक्लिप्स? एग्जांपल ले ले, मून पे जो ओवरशैडो होता है ना, उसकी रोशनी पे कुछ वक्त के लिए, राइट? द एक्लिप्स इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, राइट? तो उसी तरह से अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है या इनकंसिस्टेंट है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा. वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से ओवरशैडो हो जाएगा या एक्लिप्स हो जाएगा. और जैसे ही ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है किसी अमेंडमेंट के थ्रू या अदरवाइज, तो ये लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा. दिस डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मुलेटेड इन बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस. ये याद रखें, ये एक लैंडमार्क केस है. अब मैं समझा पाई आपको कि व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है या इनकंसिस्टेंट है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएगा, एंड नहीं होगा, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. वो कुछ वक्त के लिए ओवरशैडो कर देगा फंडामेंटल राइट्स को. फंडामेंटल राइट्स ओवरशैडो कर देंगे उससे, एक्लिप्स कर देंगे. और जैसे ही किसी अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू इस इनकंसिस्टेंसी को, ये प्रॉब्लमैटिक एरिया को खत्म किया जाएगा तो फिर से वो पूरा लॉ, तमाम लॉ जो है एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, फिर से वो द लॉ विल वर्क.
Am I clear now? Yes? Yes, ma'am. Yes, Okay. So this doctrine was formulated in the case called Bhikaji versus State of MP in India. Okay? जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ इनकंसिस्टेंसी तक जो प्रॉब्लमैटिक लॉ है वो स्लीप करेगा, ओवरशैडो रहेगा. जैसे ही इनकंसिस्टेंसी रिमूव की जाती है, ये लॉ फिर से एक्टिव और वैलिड हो जाएगा. अब समझ आई बात? ठीक है? What does this Bhikaji versus State of MP, what did the Supreme Court say? It said that as long as the problematic area is concerned, according to doctrine of eclipse, if they are violating fundamental rights, that particular provision will sleep or will be overshadowed. But immediately, once the inconsistency is removed, the law becomes active again. Am I clear? Yes, ma'am. Yes. So is it only Karina who is understanding today? And some more. Okay. We are noting down, ma'am. You all are noting down. Yeah. Okay. But let me also know that you understood or not. Okay. Then the other doctrine relating to Article 13 is called Doctrine of Severability. What is it called? Doctrine of Severability. Severability. S-E-V-E-R, severability, A-B-I-L-I-T-Y, severability. Okay. Severability means to separate. अभी जो पहले किसी ने कहा था कि उस लॉ को निकाल देंगे, okay, separate कर देंगे. That is discussed now here in Doctrine of Severability. What is doctrine of severability? अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट या वायलेटिव है, तो जो भी प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, अगर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, तो सिर्फ ये पार्ट वाइड रहेगा, बाकी तमाम पूरा एक्ट वैलिड होगा. ठीक है? So what does the doctrine of severability explains us? It says that only the problematic provision, or if a law is violative of fundamental right or is inconsistent with that with fundamental rights, that particular law will be separated, or that particular provision shall be separated from the entire act. Okay? And the remaining act will be valid or will be active. Okay. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपने नोट करने हैं. ओके? लेकिन क्या मैं समझा पाई? पहले में हमने क्या कहा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में जो प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन होता है, जो लॉ इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से, वो स्लीप कर जाएगा, कुछ देर के लिए स्लीप कर जाएगा. लेकिन जैसे ही उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट लाना भी जरूरी है, क्योंकि दे आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. तो जैसे ही अमेंडमेंट आता है, तो वो पूरा लॉ वो लॉ एक्टिव हो जाएगा फिर से. लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट या वायलेटिव है, तो जो भी प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, और अगर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, तो सिर्फ ये पार्ट जो सेपरेट किया गया है या प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, सिर्फ इतना ही वॉइड रहेगा, बाकी एक्ट सारा वैलिड रहेगा. इसको हम केसेस से समझते हैं. ठीक है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का एक इंपॉर्टेंट केस है. ये एक लैंडमार्क केस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए. स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के 8 सेक्शंस को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया. सॉरी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के जो 8 सेक्शंस थे, सिर्फ उसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया,
और बाकी पूरा एक्ट वैलिड रहा। ठीक है, उसी तरह और एक इंपॉर्टेंट केस ले लें, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। AK गोपालन का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पर सवाल उठा था। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में सेक्शन 14 एक प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन था विच वाज अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो इस केस में क्या हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पूरा वॉइड नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है सिर्फ उसे हटाया जाए और बाकी पूरा एक्ट वैलिड रहे। और यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सिर्फ जो एक प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन था सेक्शन 14, सिर्फ इसी को हटाया गया था और बाकी पूरा एक्ट वैलिड था। समझ आई आप लोगों को बात? क्या आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी समझे आप? ये इन दोनों को समझ पाए आप लोग? क्या मैं समझा पाया? इसका नाम क्या था मैम, फिर से बोलिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी सेपरेट एग्जांपल वो करना। केस बताया, वो ये के कुछ बताया था एक AK गोपालन वर्सेस मद्रास कोर्ट। देखिए, there are two cases under doctrine of severability. One case is State of Bombay versus FN Balsara, जिसमें बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के 8 सेक्शंस को हटा दिया गया था और were declared as अल्ट्रा वायरस और वॉइड। लेकिन बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट पूरा एक्ट जो है वैलिड था। ठीक है, वैलिड रहा। उसी तरह से AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 14 चूंकि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, इसको हटा दिया गया, लेकिन बाकी पूरा एक्ट वैलिड था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या फर्क है? दोनों ही उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होना यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट होना या अगेंस्ट होना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि अगर कोई भी लॉ या प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए या एब्रिज करे या वायलेटिव हो, आपके राइट्स छीन ले, तो वो लॉज स्लीप कर जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स उसको ओवरशैडो करेंगे। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट आता है और उस अमेंडमेंट के थ्रू उसमें चेंजेस लाते हैं तो फिर से वो पूरा एक्ट एक्टिव हो जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी का मतलब है सेपरेट करना। तो इस डॉक्ट्रिन के तहत कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाए तो वो पूरा एक्ट एज सच, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में स्लीप होता है, वैसा नहीं होगा, बल्कि वो ही प्रॉब्लमैटिक, अगर कोई प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, पर्टिकुलर क्लॉज है, वो पर्टिकुलर क्लॉज या प्रोविजन हटा दिया जा सकता है और बाकी तमाम एक्ट वैलिड रहेगा। समझा पाए मैं आपको दोनों डॉक्ट्रिन्स ठीक से? जी ओके। उसी तरह क्या फंडामेंटल राइट्स को फिर हमने आर्टिकल 13 बेहतर समझने के लिए मैंने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 में हमने डॉक्ट्रिन्स का एरिया समझना है, साथ में आर्टिकल 368 को भी समझना है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 empowers the parliament that if any the parliament should be careful before passing any legislation. The parliament has the power, according to article 368, the parliament is empowered to make amendments to the Constitution of India. This is what article 368 says. Now let's see in the let's understand article 368 in the direction of fundamental rights. ठीक है, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, हम ये समझेंगे।
देखिए, you need to understand it from cases. There was a case called, first case था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल 368 का जो पावर है पार्लियामेंट के पास, इसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है. ठीक है. उसी तरह सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स थ्रू आर्टिकल 368. लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये पहला ऐसा केस था जहां पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट थ्रू आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स और इट कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स. यानी पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर दे, चेंज कर दे. ठीक है. इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज थ्रू विच फंडामेंटल राइट्स आर अब्रिज्ड. इट वाज द फर्स्ट केस जहां पार्लियामेंट के पावर्स पर रोक लगाई गई थी. याद रखें, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये वो पहला केस था जहां आर्टिकल 368 की जो पावर है इस पर जो है रोक लगाई गई थी. इट सेड कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज थ्रू विच फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड और अब्रिज्ड. ठीक है. फिर एक केस आया, लैंडमार्क केस की सवानंद भारती. याद है आपको, हमने डिस्कस किया था जब आर्टिकल 368 यानी हम प्रियम्बल डिस्कस कर रहे थे. डू यू रिमेम्बर? वहां भी हमने इस केस को डिस्कस किया. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये वो फेमस केस है वे सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द गोलकनाथ केस डिसीजन एंड सेड आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं उससे वो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. ओके. what was decided in case of Anand Bharati case? It said that the power given to parliament under article 368 empowers the parliament to amend entire constitution including fundamental rights, but that amendment should not disturb the basic structure of the constitution. समझ आई बात? देखें, पहले जो दो केसेस थे, शंकरी प्रसाद का केस, सज्जन सिंह का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 के पावर के थ्रू पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं. फिर आया गोलकनाथ का केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके होने के बावजूद पार्लियामेंट कोई ऐसा चेंज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे या अब्रिज कर दे. ये वो पहला केस था जहां पार्लियामेंट की पावर पर रोक लगाई गई. फिर आया इन दो एक्सट्रीम ओपिनियन के बाद केशवानंद भारती के केस में एक बैलेंस ओपिनियन और बैलेंस क्रिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस को ओवररूल किया और कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं उससे वो तमाम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं. फंडामेंटल राइट्स को ये ख्याल रखना होगा या ध्यान रखना होगा कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो. इट डजंट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड? समझा पाई मैं आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, ये कैसी खामोशी थी? समझ आया आप लोगों को? डिड यू ऑल नोट इट डाउन? मैडम एक डाउट था छोटा सा. ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में
प्रियम्बल पे बात हुई थी ना मैडम इससे पहले वही प्रियम्बल भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना जी। ठीक है, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया गया, इनफैक्ट वो अमेंडमेंट जो था 42nd अमेंडमेंट उसने इनफैक्ट प्रियम्बल को और पावरफुल बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल बना दिया, बिकॉज उसने इट इंक्लूडेड सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट? कौन से टर्म उसने इंक्लूड किए थे? सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, यस और नो? जी। कुछ हटाया नहीं गया, वहां भी बैलेंस क्रिएट किया गया, राइट? So ultimately what is decided that with the power given through Article 368, the Parliament can amend the Constitution, entire Constitution, okay? It can amend any provision of the Constitution, including fundamental rights, but the basic structure shouldn't be disturbed. ठीक है? उसका जो ढांचा है, एक जो अहम उसका जो बेस है, उसको डिस्टर्ब किए बिना पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी टच कर सकते हैं। हमने सेक्युलरिज्म की एग्जांपल्स लिए कि नहीं लिए? सेक्युलरिज्म या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं, ऐसा एज सच नहीं छीन सकते हैं, लेकिन इसके प्रोविजंस या प्रॉब्लमैटिक एरियाज को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, सेक्युलरिज्म जो है वो बरकरार रहेगा हिंदुस्तान में, लेकिन सेक्युलरिज्म से जो फ्रीडम मिल रही है, अगर वो किसी और की फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या फिर ऐसी आर्बिट्रेरीनेस ले आए या एक दूसरे पर यानी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दे या मोरालिटी या हेल्थ को लोगों की डिस्टर्ब कर दे, तो उन प्रोविजंस को हम डिलीट कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सती एक रिचुअल था कि नहीं था? था ना? यस मैम। हाँ, तो अगर आर्टिकल यानी सेक्युलरिज्म क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है कि नहीं? अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हमने जो है पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी जो है अमेंड कर दे, तो क्या हम एज सच राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूरा छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते, राइट? लेकिन अब जैसे उसमें कोई प्रोविजन हो गया, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आप पब्लिक ऑर्डर ही डिस्टर्ब करता है, ऐसी फ्रीडम जो आपकी पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करे, तो उसको हटाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? हटाया जा सकता है। हाँ, जैसे आप बेस्ट आसान समझने के लिए, सती एक रिचुअल था, यानी अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है और उसको हरगिज भी नहीं अमेंड कर सकते हैं, अगर ऐसा समझ लेंगे अगर हम, तो सती को नहीं हटा जा सकता था, है कि नहीं? सती क्या थी? द ब्राइड शुड बी बर्न along with the bridegroom when the bridegroom dies, yes or no? तो ये जो Yes, एक ma'am. रिचुअल है, ये रिचुअल अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखकर कहें कि नहीं फंडामेंटल राइट है हमारा, इसको हरगिज अमेंड नहीं करना चाहिए, तो आज भी सती बरकरार होती है कि नहीं? तो सेक्युलरिज्म एज सच बेस स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वो बरकरार रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लमैटिक एरियाज जो पब्लिक ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करें, हेल्थ करें, उन तमाम फंडामेंटल राइट होने के बावजूद हम उसे अमेंड कर सकते हैं। समझ आई बात? डिड आई एक्सप्लेन यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, अनवर पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, कैन वी से दिस, ये जो भी ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है मैडम, ये भी इज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन मैडम? Yes, you can consider, see the triple talaq again is ये भी सेक्युलरिज्म का ही एक हिस्सा। आप क्या फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब अगर हम उस एंगल से देखते हैं तो एज सच इस्लाम प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया, लेकिन ट्रिपल तलाक जो एक रिचुअल है, एक तरीका, एक रिचुअल समझ रहे हैं ना, एक प्रैक्टिस जो है, वो हमें एक तरह से इट वाज डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर, राइट? उसको हटा दिया गया, उसको अमेंड कर दिया गया, तो दैट इज वैलिड एज पर आर्टिकल 368, यस और नो? यस मैडम। ओके,
Can we move ahead now? Please. Okay. So let's discuss the fundamental rights now. जो हम बहुत popular हैं, हम यानी जो पढ़ते हैं right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation. अब इन तमाम articles को हम discuss करते जाएंगे. I want your participation also because these are very यानी schooling time से हम पढ़ते आ रहे हैं, right? So right to equality is the next right guaranteed, next fundamental right guaranteed by the Constitution. Now this right to equality is discussed from Article 14 to Article 18. Yes? Remember these articles in order, guys. ठीक है? आपने इन articles को order में याद रखना है examination point of view के लिए भी. ठीक है? यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या डिस्कस करेगा, 16, 17, 18, you need to remember in this order. So article 14, right to equality, is discussed under article 14 to 18. So article 14 states that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Okay, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of the law within the territory of India. Now, this article consists of two parts. देखिए ये article दो चीजें डिस्कस कर रहा है, एक तो equality before law और equal protection of law. ये आर्टिकल कहता है स्टेट किसी भी सिटीजन को यानी हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करेगा और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट? सो दिस आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द अदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है? सो व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स every citizen is equal in the eyes of law. Yes or no? देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन हो, दोनों ही लॉ की नजर में, कानून की नजर में एक सा है कि नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर एक कोई क्राइम कमिट कर दे तो क्या जस्ट बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर है उसे माफ कर दिया जाएगा? बताइए. जी नहीं. उसी तरह कॉमन मैन अगर करे, ठीक है, तो अगर कोई क्राइम कमिट करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन हो, लॉ दोनों को अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? दोनों को अप्लाई करेगा. दोनों को अप्लाई करेगा. दोनों ही पनिशेबल होंगे लॉ के तहत, और बोथ आर पनिशेबल अंडर आइज ऑफ लॉ. यस और नो? दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है? फिर इसी आर्टिकल का दूसरा हिस्सा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि जैसे लॉ अप्लाई होता है सबको इक्वली, उसी तरह लॉ शुड प्रोटेक्ट इक्वली टू ऑल इट्स सिटीजन्स और टू एनी पर्सन. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइक पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ इसको. एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब इंसान है. ठीक है? अब जो रिच है वो एक लॉयर अच्छे से हायर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताइए. कर सकता है ना. यस, बहुत ही, यानी जितनी फीस चाहे वो दे सकता है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना केस यानी टू पुट हिज केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफेंड हिमसेल्फ ही कैन हायर any counsel, right? Yes or no? लेकिन वही एक गरीब है, अगर कानून के शिकंजे में है तो will he be able to afford a counsel and will he be able to defend himself properly? No ma'am. No. So ऐसी सिचुएशन में पुअर को स्टेट क्या करेगा? स्टेट will provide or him legal aid, free legal aid services. Yes or no?
सुना है हमने या आपने ma'am. सुना? फ्री जी, लीगल जी, एड सुना है, सर्विसेज. सुना है, Okay. सुना है. Yes, sir. Free of cost, the court will order according to him. अगर कोई नहीं डिफेंड कर पाए अपने आप को, न अपना केस ठीक से रख नहीं पाए, किसी वकील को अपॉइंट न कर सके, तो फिर दे विल प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज. द कोर्ट के अंदर, एडमिन के अंदर ही होता है फ्री लीगल एड सर्विसेज, जहां पे एडवोकेट्स उन्हें फ्री सर्विसेज देंगे. ठीक है, तो ये हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय द स्टेट. यानी क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, लाइक आर ट्रीटेड अलाइक, यस और नो. एक मतलब एक कम्युनिटी है जो विच इज यू नो विच इज ट्रीटेड थोड़ा सा डिफरेंट, बट वो डिफरेंट ट्रीटमेंट किस लिए दिया गया? बाकियों के साथ इन्हें इक्वल बनाने के लिए ही डिफरेंटली उन्हें ट्रीट किया गया. समझ में आई आपको बात? समझा पाई मैं आपको? Yes, ma'am. नहीं समझ आया? इक्वालिटी बिफोर लॉ इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. ये प्रॉपर स्टेटमेंट है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लाइक पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक. यानी देयर माइट बी पीपल who are backward and there might be people who are developed, or they are far advanced in everything. So अब इनके साथ इनको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिले. तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि लाइक there might be rich or poor, there might be two people, one rich and one poor, both might be having a case. The rich may defend defend his case very well. Then what about the person who is poor? Will he be left alone like that? तो ये responsibility किसकी है? स्टेट की है ना. उसको भी लॉ का प्रोटेक्शन बिल्कुल उसी तरह मिले, तो उसको भी फ्री लीगल सर्विसेज दिए जाएंगे, तो फिर वो भी अपना केस ठीक से डिफेंड करेगा. दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट ही ट्रीट किया गया. इक्वल तो नहीं लग रहा क्या हमको इक्वल ट्रीट किया गया? नहीं ना. लेकिन ये अनइक्वल जो ट्रीटमेंट है, ये इक्वालिटी लाने के लिए ही अनइक्वल ट्रीटमेंट की गई. समझ आई बात आपको? जी मैडम, पॉजिटिव है. सो उसी तरह आप ले लें, फीमेल्स जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है जॉब पर, यस और नो? Yes, लेकिन ma'am. will men be given that relaxation? No. Women are given paid leave, during that period of pregnancy, and paid leave is given to protect their interest, yes or no? उनकी अपनी एक नीड होती है which has to be considered. Yes? Yes. Okay. Yes, ma'am. So now this is called equality before law and equal protection law, which is discussed under Article 14. Am I clear? But Yes, madam. equality before law has certain exemptions also. Remember, every fundamental rights, अब जब हम डिस्कस करते जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि हर फंडामेंटल राइट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ मिली है, एब्सोल्यूट नेचर नहीं है. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के, हमने कहा फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है. इसीलिए आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, ताकि रीजनेबल उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, वो रीजनेबल हो. रेस्ट्रिक्शन यानी लिमिट लगाई जाए उस फ्रीडम पर, उस राइट पर, लेकिन वो कैसी हो? रीजनेबल हो. समझ आई आपको बात? जायज हो, Yes, madam. रेस्ट्रिक्शन हो. तो इसके भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं. अब देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट फॉर एक्सरसाइजिंग देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स. ठीक है, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा. राइट टू इक्वालिटी में कोई एग्जेम्पशन है क्या? मतलब इक्वली जो ट्रीट नहीं किया जाता है. देखें, अब प्रेसिडेंट और गवर्नर तो पावरफुल है कि नहीं? अब इनको डिफरेंट ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ? समझ आती है? लॉजिक नहीं बनती है ना. तो ये एक एग्जेम्पशन है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी पावर्स जब वो एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं
और उस डिसीजन के लिए वो कोर्ट ऑफ, अगर किसी की फंडामेंटल राइट छिन जाती है तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरत है, दिस इज नीडेड, दिस इज रीजनेबल। अगर ये फ्रीडम नहीं दी गई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज इमरजेंसी पावर्स। तो इसीलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर आर एग्जेम्प्टेड, they are not answerable to court for exercising their executive powers. Okay, is that clear? Yes, Okay. madam. Yes, Now, madam. we are discussing exemptions of right to equality. Okay, equally जिसे treat नहीं किया जाएगा वो क्यों, ये reasonable restrictions हैं जो हम अब वो discuss कर रहे हैं। दूसरा, no criminal proceeding against president or governor can be instituted or continued during their tenure in office. ये याद रख लें कि हरगिज और हरगिज कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जब तक वो टेन्योर और ऑफिस को होल्ड करते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। अगर सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग है, यानी कोई क्रिमिनल एक्ट है, अब देखें फॉर एग्जांपल फांसी की सजा को कंफर्म करना प्रेसिडेंट का पावर है कि नहीं है ना? Yes, madam. हाँ, है मैम। तो क्या उसके लिए क्योंकि कोई मर गया है वो एक क्रिमिनल एक्ट हो गया ना, अपने पावर के तहत उसने मार दिया, तो क्या हम उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे? नहीं, तो ये एक एग्जेम्पशन है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जाम्पल civil proceeding can be initiated where there is a claim and compensation. Civil proceeding can be initiated against president or governor but with a prior notice of 2 months. ठीक है? जी इस स्टेट ऑफ हेड यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट ऑफ हेड हैं कि नहीं, इनके ऊपर जब तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। इनका टेन्योर होने के बाद की जा सकती है, याद रखें, ठीक है। लेकिन ऑफिस के दौरान अगर कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट हो जाता है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन पावर में होने के बावजूद अगर कोई यानी इन्होंने किसी का कॉम्पेंसेशन इन्होंने देना है, यानी कोई ल्यू है, कोई डेट है और सिविल इस इनके ऊपर प्रोसीडिंग की जा सकती है, लेकिन 2 महीने की प्रायर नोटिस के बाद ही इनके ऊपर सिविल केस चलाया जाएगा या सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। समझा पाई मैं आप लोगों को? Yes, madam. Yes, madam. मैडम यहाँ पे हाँ। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर कोई पर्सनल क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो No, even then no criminal proceeding can be initiated as long as they hold the office. ठीक है? अच्छा जी मैम। But once they ma'am, one more question. Yes. Like, can their tenuity or their tenure be terminated in any case or in any situation? See, देखें, tenure भी terminated is like impeachment हमने डिस्कस किया कि नहीं डिस्कस किया? उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है अगर impeachment proceeding पार्लियामेंट में इनिशिएट कर दी जाए, लेकिन ठीक है, एज सच एक कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें अपीयर नहीं करवाया जा सकता। ठीक है? मैडम अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं पर्सनल, तो वो राइट टू इक्वलिटी नहीं रहेगा ना फिर लोगों के लिए। वही तो एग्जेम्पशन है ना, वही तो एग्जेम्पशन प्रोटेक्शन मिला है। देखें, वरना हर एक्ट उनका क्रिमिनल एक्ट ट्रीट कर लिया जाएगा, है कि नहीं? दे नीड दैट शील्ड टू एक्सरसाइज देयर पावर। कोई क्रिमिनल नहीं होता है प्रेसिडेंट, हम तो क्या क्रिमिनल्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेंगे? लेकिन पर्सनल के लिए अगर कुछ हो जाता है उसके लिए so as long as he is in the office he cannot be prosecuted. Once he moves out of the office then it can be initiated. ठीक है? लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट हुई है
So that cannot be initiated even after even after he resigns or he office से हटने के बावजूद भी उसका टेन्योर होने के बावजूद ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई डिसीजन लिया गया हो तो विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. रिमेंबर दैट. पर्सनल कैपेसिटी जैसा आप लोगों का सवाल है, यस ही कैन, बट नॉट ड्यूरिंग हिज टेन्योर. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इट कैन हैपन, इट मे बी इनिशिएटेड. But what is important here is to remember is civil proceeding can be initiated even when they are in the office, but with a prior notice of 2 months. Okay. Otherwise, remember, as such, governor or president of India cannot be proceeded in any court of law. अगर इतनी ही तकलीफ उनकी ऑफिस में होल्ड करने से है तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के थ्रू जो पार्लियामेंट में एक जो प्रोसीजर होता है 2/3 की वोटिंग हो, दोनों हाउसेस से बिल पास हो, इनका गिल्ट प्रूव हो, तब जाकर इन्हें इम्पीच किया जाएगा. वो एक डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है. Is that clear? 368 आर्टिकल के बारे में वो बता रहे हैं आप. पार्लियामेंट वाले चेंज कर सकते हैं इसे अगर कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है तो गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने. This is a settled rule, you know. There is nothing called changing. As such, Article 368, if you look at Article 368, it can change the entire constitution. When that is so, everything can be changed. Even this can be changed. You can assume it. But इसके लिए एक settled rule है, okay? Criminal proceeding, if official capacity में कोई act हुआ है, किसी को देखें, for example, shoot करने के orders उसने official capacity में कर दिए. क्या अब आप कह देंगे कि इनोसेंट क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पे बाहर निकल गया था और इसको जस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डर के तहत शूट कर दिया गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करें? नहीं कह सकते हैं ना. ठीक है, यही सिंपल सी बात समझो. ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्ट को क्रिमिनल ट्रीट नहीं किया जाएगा. इफ एनी ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड दैट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. ओके, बट देन if as long as he is in power or holding, a civil proceeding can always be initiated, but then prior 2 months notice is to be given. This is the settled rule, and this is exemption from equality before law. When we said कि prime minister और common man same equally treat किया जाए, यहाँ पे हमको नजर आता है कि इन्हें नहीं ट्रीट किया जा रहा. तो ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है सो दैट वो अपनी ऑफिस को इफेक्टिवली अपने ऑफिस में अपने पावर्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करे, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ अंडर इंटरनेशनल लॉ, foreign diplomats who are on a visit to India or posted here and leaders or heads of the state on their official visit are not answerable in the local courts. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर फॉरेन डेलीगेट्स हमारी कंट्री को आते हैं, ठीक है, और डिफेंस में अगर यानी कुछ उन पर हमला हुआ है या यानी उन्होंने यानी अपनी डिफेंस में किसी का कत्ल कर दिया, तो ये सारा उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता. अगर इनको भी जो है शील्ड है, प्रोटेक्शन है, they cannot be answerable or they cannot be held here just because when they came on an official visit, they cannot be held here or made answerable to the local courts. These are the exemptions to right to equality. Okay, they are treated differently because of their position, and this is very important so as to strengthen their office or to make easier for them to execute their powers or execute their official duties. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, madam. इतनी खामोशी के बाद यस मैडम का मतलब कैलकुलेट करके जवाब दे रहे हैं. आप लोग को समझ नहीं आ रहा इमीडिएटली? नहीं आ रहा मैडम, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम. प्रॉब्लम Also a moment, I think they take to unmute the mic and then speak up. Okay. So are they on a hard mute? Okay. No. Even otherwise, no hard mute used till so far. Okay, thank you. So let's move on to Article 15. Now, what is Article 15? Article 15 states, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion,
race, caste, sex, place of birth or any of them. देखिए इसका मतलब क्या है, स्टेट किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, only on grounds, only important है, the word only is very important, only on what grounds, religion, race, caste, sex, place of birth, ठीक है, और any of them, किसी एक, यहाँ पे जो हमने गिने हैं, religion, race, caste, sex, place of birth और any of them, इनको इनसे हटकर फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस मैडम। देखें आर्टिकल 15 कहता है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. यहाँ पे ओनली को समझना जरूरी है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ जो एस्पेक्ट्स गिने गए हैं जैसे रिलीजन है, तो कोई भी यानी स्टेट हमको ये नहीं कह सकता है मुस्लिम हो तो यहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में दाखिल हो सकते हो, हिंदू हो तो नहीं दाखिल हो सकते हो। क्या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है स्टेट? नहीं कर सकते मैडम। नहीं कर सकता मैम। उसी तरह से ये कहकर कि देखें आप पर्टिकुलर कास्ट के हो तो ही आप जो है इस थिएटर में आ सकते हो, मूवी एंजॉय कर सकते हो, आप पर्टिकुलर कास्ट के हो नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हो, आप आर्यंस हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो, आप शियाज हो तो आप नहीं जा सकते हो, ऐसा हो सकता है? जस्ट बिकॉज आप शिया हो ज्यादा फाइन भर दो, सुन्नी हो तो फाइन ना भरो, ऐसा हो सकता है? नो। उसी तरीके से आप पंजाब से हो क्योंकि राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो भाई आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, बिजनेस करो, लेकिन बिहार के लोग बहुत पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेट नहीं है, आप वहीं रुको, कहीं नहीं जाना, अपनी ही स्टेट को डेवलप करना, वहीं बैठ के ट्रेड करना, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकते मैडम। हाँ, इसको कहते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तहत हम जो है स्टेट इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। समझा पाई मैं आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैडम। तो देखिए इसका सेकेंड पॉइंट एक नोट करें, no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition. देखिए इस आर्टिकल को लेके एक अब रीसेंट एक बहुत बड़ा केस हुआ था, याद थोड़ा रिकलेक्ट करके बोलिए क्या केस डिस्कशन में था? बहुत न्यूज में था केस। एनआरसी मैम। हाँ बताएं। साबरीमाला केस सुना आपने? यस यस सर। ठीक है। Entering in the temple, the women were prohibited during some certain period not to enter the temple. Yes or no? Yes sir. यस मैडम। यस मैडम। prohibition लगाई गई थी ना, तो अब ये prohibition on ground of sex हुआ कि नहीं हुआ? यस। Men are allowed at all time, but women are not allowed to enter. Yes. तो Supreme Court ने कहा there cannot be any discrimination on the basis of sex as per Article 15 और इसको खारिज कर दिया गया, इसको इनवैलिड कर दिया गया इस लॉ को, इस अमेंडमेंट को। ठीक है, समझा पाई मैं आपको? यस मैडम। Okay. That rule which prohibited, that law which prohibited women from entering the worship place was declared null and void by Supreme Court of India on the grounds of Article 15 that no person should be subject to any kind of disability or prohibition or should not be discriminated on the basis of sex, because there are certain things: religion 1, race 2, caste 3, sex 4,
प्लेस ऑफ बर्थ 5 और एनी ऑफ दिस 5। ठीक है, समझ में आई बात? Okay. Yes, madam. Lekin, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. हम ये तो कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन इसके भी रीजनेबल एग्जेम्पशंस हैं। विमेन और चिल्ड्रन को लेकर कोई भी स्पेशल प्रोविजन इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए, क्योंकि विमेन की रिप्रेजेंटेशन हम हर एरिया में कम ही पाते हैं, यस और नो? तो देयर इज ऑलरेडी अ बिल पेंडिंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन द पार्लियामेंट, यस और नो? ये एक स्पेशल प्रोविजन है। ये स्पेशल प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन ना करने का एक आर्टिकल होने के बावजूद भी ये बनाया जा सकता है। ये एक एग्जेम्पशन है इस आर्टिकल के, ठीक है? तो कोई भी nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women as well as children. Children को लेकर क्या? Children को भी discriminate नहीं करना चाहिए ना। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन को हम ले लेंगे आर्टिकल 13 के सॉरी आर्टिकल 15 के तहत, अगर उस सिर्फ वेगली हम चले जाएंगे तो उसको हम क्या देखेंगे कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रेस को लेकर नहीं की जा सकती। लेकिन वहीं पर यहाँ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं कि वो एग्जेम्पशंस क्या हैं कि औरतों और बच्चों को लेकर कोई भी हम स्पेशल कानून, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। तो देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन है, इनकी हेल्थ को रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। दे आर नीडेड और नॉट, बताइए? दे आर इम्पोर्टेंट। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ना डिस्क्रिमिनेट करें तो फिर हम इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना ही नहीं पाएंगे, यस और नो? तो दिस इज एन एग्जेम्पशन। स्पेशल प्रोविजंस इन स्पाइट द कोर्ट, स्टेट को चाहिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उसके बावजूद विमेन के एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ये एक एग्जेम्पशन है इस आर्टिकल के लिए, ठीक है? उसी तरह बच्चों को लेकर भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। जब बात वेलफेयर की आ जाए तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। समझने वाली क्या बात है? एज सच आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है, स्टेट को हरगिज किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है। लेकिन बात अगर वेलफेयर की आ जाए तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है? मैम, चिल्ड्रन वेलफेयर का कुछ एग्जांपल है मैम इसका? राइट टू एजुकेशन मैंडेटरी बनाया गया ना आर्टिकल, यानी फ्री एजुकेशन है उनके लिए। फिर वही हायर एजुकेशन के लिए नहीं दिया गया है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन हुई कि नहीं एडल्ट्स और बच्चों में? जी हुई। समझ आई बात अब? जी मैम। ओके, सो नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लॉज 2 जो हमने पढ़ा और आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward class. तो देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल को लेकर कि एज सच तो स्टेट किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को बेस बनाकर। लेकिन हाँ, जब बात वेलफेयर की आ जाए, किसी वीकर सेक्शन को आगे करने की आ जाए, डेवलपमेंट की आ जाए, उनकी अपलिफ्टमेंट की आए, तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक तबका सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यस और नो? एससीज एसटीज जो एक वक्त तक एक बहुत मुद्दत तक उन्होंने जो तकलीफें उठाई और उनके पास जो एजुकेशन कम है, और दलित्स ले लें, और उनकी जो बैकवर्डनेस है जनरल कैटेगरी के बराबर लाने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, उनके लिए रिजर्वेशंस यानी फिक्स किए गए, डिसाइड किए गए। सो ये सारी चीजें वेलफेयर को लेकर हैं एक कम्युनिटी की, है ना? और अपलिफ्टमेंट को लेकर है कम्युनिटी की। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वैलिड है,
in spite of Article 15 stating not to discriminate or not to be discriminated by the state. समझ आई बात? Was I able to explain you what is Yes, Article 15 now? Yes, madam. Yes, madam. So let's go to Article 16, okay? Article 16 speaks about equality in matters of public employment. थोड़ा गौर से सुने. The state cannot discriminate anyone in the matters of employment, and all the citizens are eligible to apply for government jobs. Yes or no? This Article 16 Yes, also ma'am. speaks about discrimination. It says, वो तो जनरल आर्टिकल 15 क्या था? जनरल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है. आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टेट की तरफ से, ये डिस्कस करता है, ठीक है. आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट को हरगिज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. ये है आर्टिकल 16, ठीक है. लेकिन इसमें भी फिर एक्सेप्शंस हैं, है कि नहीं है? आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आ रहा? सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए एक्सेप्शन है कि नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में? हाँ, हर जगह हम रिजर्वेशन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये रिजर्वेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में भी है. जैसा हमने आर्टिकल 15 में डिस्कस किया, उसी तरह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी ये डिस्क्रिमिनेशन जायज है. Okay, it is legal to discriminate socially backward or educationally backward people. Okay, लेकिन recent amendment जो आया 104 जो हमने डिस्कस किया, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी इंक्लूड करता है इसमें. इसको भी डिस्क्रिमिनेट करके इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाने की आजादी, यानी प्रोविजंस बनाए गए. इसको थोड़ा बेहतर समझते हैं, ठीक है. आपने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट सुना कभी? क्रीमी लेयर? Yes, ma'am. हाँ, ये क्रीमी लेयर क्या है? ये बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए है. देखें, ये जो है ना क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, एडवांस्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को डिस्कस करता है. तो जो रिच हैं, जो अच्छे, जो रिच हैं, जिसके पास पैसा है, दैट इज कॉल्ड क्रीमी लेयर. और जो बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उन्हें नॉन क्रीमी कहा जाता है. तो क्रीमी लेयर तो इसके तहत जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन बना दी गई है और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया. यस और नो? अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट ले लें, 2019 का था ना, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशंस जो है हमने इंक्लूड कर दिए. लेकिन जनरल कैटेगरी में किसको रिजर्वेशन मिलेगी? जो नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो पुअर हैं, उनको जो है रिजर्वेशन. इसीलिए तो आजकल इनकम सर्टिफिकेट मांगी जा रही है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टू डिवाइड द क्रीमी. देखिए, हमको ये तो मालूम था कि डिस्क्रिमिनेशन इवन पब्लिक ऑफिसेस और गवर्नमेंट जॉब्स में भी है. एज फार एज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड तबके जो हैं, जिसकी डेवलपमेंट बहुत जरूरी थी इनको जनरल कैटेगरी के साथ लाने के लिए, उनके लिए ऑलरेडी हमने रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी इंक्लूड कर लिया, जो डिस्क्रिमिनेट करने के बावजूद रीजनेबल है, जस्टिफाइड है. लेकिन जनरल कैटेगरी में गौर किया गया कि जनरल कैटेगरी में भी जो है बहुत ही पिछड़े लोग, तकलीफ ज़दा, फाइनेंशियली हिट लोग हैं, जो इकोनॉमिकली जिन्हें हम बैकवर्ड कह सकते हैं, या फिर उसके लिए हमने क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया. अकॉर्डिंगली क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर को डिस्क्रिमिनेट करके फिर नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी इंक्लूड की बाय 104 अमेंडमेंट. Am I clear now? Yes, ma'am. अब जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, तो अब ये सोचने लगा है लेजिस्लेचर कि SC एंड ST में भी ये क्रीमी लेयर होनी चाहिए. अब SC एंड ST में क्रीमी लेयर कैसा? ऑलरेडी तो वहां पर रिजर्वेशन है कि नहीं है? है ना? है. है.
उसके बावजूद अब ये सोच रहे हैं कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट ला। अब जैसे एग्जांपल ले लें, अगर एक फैमिली से कोई IAS ऑफिसर रिजर्वेशन के थ्रू बनता है, ठीक है, और फिर उसकी औलाद में से या से उसका बेटा रिजर्वेशन 2 भी अवेल करता है, यानी जब उसका बेटा जो है बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, और वो उसने भी जो है IRS में वो कामयाब हो गया रिजर्वेशन के लिए। अब ये फैमिली ट्री को देखिए, बेटा बाप बना IAS, फिर बेटा बना IRS, फिर उसका बेटा बना IFS। मतलब अब ये पूरी ही फैमिली एक स्पेशल फैमिली बन गई कि नहीं बन गई? तो अब इनकी जेनरेशन जहां कट ऑफ अवेल कर रही है, तो उसी SC/ST में कुछ लोग पीछे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं मैडम। तो ऐसा नहीं हो गया जैसा कि इकोनॉमिकली ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं और रिजर्वेशन होने के बावजूद उसी कम्युनिटी में कुछ लोग और वीक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ के जो है इन्होंने जेनरेशंस ने जो है इसके रिजर्वेशन का फायदा उठाया है ना। तो सोच रहे हैं कि ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट SC/ST के रिजर्वेशन में भी इंक्लूड किया जाए। एक ऐसा थॉट है विच इज स्टिल नॉट एग्जीक्यूटेड। समझा पाई मैं आपको आर्टिकल 16? Yes, madam. Article 16 speaks about what does it say? It says that the state cannot discriminate anyone in the matters of employment, and all the citizens are eligible to apply for government jobs, but with some reasonable exceptions. Reasonable exceptions की हमने example दिए थे, क्या दिए हैं? रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, ये एक एक्सेप्शन है कि नहीं है? ठीक है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इस फंडामेंटल राइट पर, हाँ कि ना? Yes, madam. Yes. Okay, now let's discuss Article 17. बताएं आर्टिकल 17 क्या है? What is Article 17? Abolition of untouchability and prohibition of its practice. Yes, आर्टिकल हाँ हुस्ना, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, वो आपने अभी बतलाया था ना आर्टिकल 15 के बारे में, उसमें जिन्स, जात और नस्ल मजहब, तो उसमें हमको मुकाम पैदाइश के बारे में आप बता रही थी, उसका वो नुक्ता समझ में नहीं आया। और हाँ ठीक है, छोटी सी बात कि आपने जो बतलाया पहले, थोड़ी देर पहले, ना आपका थोड़ी आपकी आवाज कट के आ रही है। आपका एक सवाल है कि प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर मुकाम पैदाइश की मुकाम को लेकर जो डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और एक आपने बताया था ना कि आर्टिकल 13 में बुनियादी हुकूक के बारे में बतलाया था ना, वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये जो बुनियादी हुकूक को जो मुतासिर करती है, कानून गैर मौसर करार दिए जाएंगे, था आपने। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, ठीक है? जी हाँ, ठीक है, वो समझ में आ गया है कि अगर वो कानून के ऊपर असरअंदाज होते हैं या उसके खिलाफ होते हैं, तब वो कलाम हो जाएंगे, फिर गैर मौसर समझा जाएगा कि उसमें तरमीम नहीं की जाती है, मतलब अमेंडमेंट नहीं किया जाता। अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को भी किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियाद को नहीं हिला सकते, बुनियाद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? मैं समझ पाई हुस्ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिर्फ वो एक नुक्ता समझ में नहीं आया मुकाम पैदाइश की बिना पर। देखिए, मुकाम पैदाइश की बिना पर भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जस्ट ये बोल के कि आप बिहार से आ रहे हो या फिर आप आंध्रा से आ रहे हो, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना, बजट जब पास होता है, राइट? बजट को ले लेंगे एग्जांपल,
ठीक है। बजट के दौरान यानी हर स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट रखती है कि नहीं? बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्टेट, हसनुद्दीन आप अभी ज्वाइन हुए हैं राइट? अस्सलाम वालेकुम हसनुद्दीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या वक्त हुआ है आपका? जी मैंने ही आपको एडमिट करवाया क्लास के अंदर। क्या टाइम है आपकी क्लास में ज्वाइन होने का? मैडम मेरे को स्पोकन इंग्लिश का भी एकेडमी है, प्लस ये वो ज्वाइन करते हैं। आपने डिसाइड करना है कि क्या इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि ये आपके एग्जाम्स नियर कर रहे हैं और आप आधे घंटे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ मैडम सही है। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश को मैं कम नहीं कह रही, लेकिन आपने प्रायोरिटाइज कर देना है, ठीक है? और क्योंकि हमारी कोशिश भी ये होती है कि स्पोकन इंग्लिश जिसकी डिफिकल्टी है उसको नजर में रख के हम क्लासेस को लेक्चर डिलीवर करें, ठीक है? तो प्लीज आई होप कि आप कल से टाइम पर रहेंगे क्लास में। हाँ तो उसना मैं ये बता रही थी, एग्जाम्पल दे रही थी कि देखें अगर जब बजट पास होता है ना पार्लियामेंट में, तो हर स्टेट अपनी रिप्रेजेंटेशन रखता है कि उनको इतने 1000 करोड़ चाहिए, हमारे स्टेट के लिए इतने पैसे सैंक्शन कर दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जरूरत को देकर सैंक्शन कर सकता है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकता है कि तेलंगाना है, क्योंकि तेलंगाना मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको इतना बजट नहीं दूंगा? अब देखिए पंजाब से जो है मुझे बहुत माली यानी हमारे सारे मुल्क को फायदा है, तो ज्यादा बजट में सिर्फ पंजाब को दूंगा और दूसरों को नहीं दूंगा? नहीं, है ना? उसी तरह चलें। अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी जाए, चलें, लेट्स नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। मुझे समझ आया कि यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। चलें लेते हैं एक इस तरह का एग्जाम्पल। अब हुस्ना आती है कहाँ से? निजामाबाद से। हाँ आती है हुस्ना, आप कहाँ से आती हैं? निजामाबाद से। अब हैदराबाद में जब आप आ गई, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में जाती हैं, सरकारी अस्पताल में आप जाती हैं, ठीक है, और समझे आपके पास आरोग्यश्री का एक कार्ड भी है, ठीक है, वो आपका राइट है ना, है कि नहीं? लेकिन जस्ट बिकॉज आप निजामाबाद से हैं, क्या वो कह सकते हैं कि भाई आपका आरोग्यश्री ला लो, आप कुछ भी ला लो, आपको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती? क्या वो कह सकते हैं? जी नहीं, नहीं कह सकते। हम पहले हैदराबाद वालों को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये अस्पताल हैदराबाद में है, और मैडम आप जो है निजामाबाद से आती हैं, आपको वेट करना होगा कुछ अरसे के लिए, आपका नंबर आया तो हम देखेंगे। क्या ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? मैम परसों पैंडेमिक में कोरोना में मैं ऐसा करे थे ना मैम, आंध्र प्रदेश वालों को तेलंगाना में नहीं आने दिए। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसका सवाल था ये? देखिए अगर वो आता तो पूरा तेलंगाना अफेक्ट हो जाता था, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है? लेट्स नॉट गो इनटू दिस मीगर कॉन्सेप्ट। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट एज सच? जी हाँ मोहतरमा, जज़ाकुमुल्लाह। सो व्हाट वाज आई डिस्कसिंग? मैं भूल गई हूँ आप लोगों। आर्टिकल 17। तो ठीक है, आर्टिकल 17 abolishes the practice of untouchability, and practice of untouchability is also declared as an offense, and anyone practicing untouchability is punishable under law. Yes or no? तो अनटचेबिलिटी जो एक था यानी जो रहा है एक सोशल इविल रहा है, जिसके अगेंस्ट यानी फ्रीडम फाइटर्स ने एक मुद्दत तक जिसको हटाने के लिए उसके चैंपियन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यस और नो? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें फादर भी कह सकते हैं हम, जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, वो खुद एक इस अनटचेबिलिटी की इविल से जो है he was really affected, badly affected, was बहुत वर्स्ट सिचुएशन। देखिए ऐसा इंडिया ने इस तरह के जैसे सती हुई, अनटचेबिलिटी हुई, ये ऐसे कुछ सोशल इवल्स थे जिसको हटाने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फाइनली जाकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये रियलाइज हुआ कि अनटचेबिलिटी जो है एक बहुत ही घिनौना,
सोशल इविल है, जो एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन लाता है सोसाइटी में, डिस्टर्बेंस लाता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में, पब्लिक ऑर्डर में, और एक कम्युनिटी को यानी पीछा कर देता है, उसको ह्यूमन की तरह भी, एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता। तो फिर इस आर्टिकल के तहत ये इसको फंडामेंटल राइट सिर्फ एक क्रिमिनल यानी कोई आईपीसी में नहीं किया, कोई यानी कोई सब्सटैंशियल लॉ या आप कह लें प्रोसीजरल लॉ में सिर्फ इंक्लूड नहीं किया, बल्कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि कोई भी यानी किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी हो, इसको हम एबॉलिश कर देंगे, हमारी सोसाइटी से निकाल देंगे, हटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। ये एक अज़्म लिया गया था और आर्टिकल 17 इसको एबॉलिश करता है, हर तरह की अनटचेबिलिटी को। लेकिन और इसको क्राइम भी डिक्लेयर कर दिया गया, एक ऑफेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया, और ये भी कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट है हर उस शख्स का कि अगर उसके खिलाफ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करे तो उसको उस एक्ट को जो है क्राइम ट्रीट किया जाए, उसको ऑफेंस ट्रीट किया जाए, और सिर्फ ऑफेंस ही ट्रीट ना किया जाए बल्कि उसको कानून के तहत, लॉ के तहत उसको पनिश भी किया जाए, ऐसी किसी एक्ट को। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे थोड़ी इसकी टेक्निकलिटीज को। अनटचेबिलिटी अगर आप देखें तो अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया जैसे स्टेट को डिफाइन किया गया, यानी कौन सी प्रैक्टिस एक्चुअली अनटचेबिलिटी होगी इस तरह से डिटरमाइन नहीं हुआ है कि नहीं। अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है। देखिए, एवरी क्राइम की डेफिनेशन है कि नहीं है आईपीसी में? यस मैम। लेकिन अनटचेबिलिटी की आप डेफिनेशन नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ अनटचेबिलिटी ही नहीं, बहुत सारे टर्म्स यानी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में जितने टर्म्स यूज किए गए हैं उसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सेक्युलरिज्म को ले लें, डेमोक्रेसी को ले लें, रिपब्लिक को ले लें, ये तमाम चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं। दे वर ओनली यूज्ड इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। देखिए, अगर डिफाइन किया जाता तो उसको लिमिट हो जाना पड़ता है कि नहीं। तो 70 साल पहले जो डेफिनेशन थी जरूरी नहीं है कि वो आज भी वैलिड हो। समझा पा रही हूं मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैडम, यस यस अगर उस वक्त हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट को अगर डिफाइन करके रख देता अगर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अगर डिफाइन कर देते तो ये लिमिटेड हो जाता कॉन्सेप्ट, तो फिर किसी दूसरे तरीके की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में आ जाती है कि नहीं। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी और खूबसूरती ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किए बिना, लिमिट किए बिना एक वाइडर टर्म में इसको रख दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं राइट टू प्राइवेसी ले लें। देखिए, राइट टू प्राइवेसी जो है ये जो राइट है, उस वक्त हमको जरूरत थी राइट टू प्राइवेसी? उस वक्त नहीं थी, पर अब है मैडम। अब जरूरत है इसकी, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम इस वक्त, दिस इज नीड ऑफ द टाइम कि राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया जाए। और राइट टू प्राइवेसी आपको पता है किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? हम जब आर्टिकल 20, 21 वगैरह डिस्कस करेंगे तो जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वहां जो डिस्कस की गई है उसमें इंक्लूड, उसका एक हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी। अगर हम उसको उस वक्त हम राइट टू लाइफ और लिबर्टी को डिफाइन कर देते तो फिर हम राइट टू प्राइवेसी को आज उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते थे, है कि नहीं। तो मतलब ये हमको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे तमाम यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन इसलिए नहीं किया, इट हैज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन और इन डिस्क्रिशन ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, by the highest court of the land, and Supreme Court according to present scenario will come up with best form of definition. ठीक है, every time और need of the time के तहत सुप्रीम कोर्ट एक बेस्ट डेफिनेशन यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोटेक्टर भी है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये डेफिनेशंस इसलिए नहीं दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट इसकी बेस्ट डेफिनेशन के साथ नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर में जो है डिफाइन करे और इसको इंक्लूड करे और इसके अंदर जो है इन तमाम इविल्स को खत्म करने का मौका भी मिले। तो बेस्ट डेफिनेशन कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए वहां ड्राफ्ट करने वालों ने ये जरूरी नहीं समझा कि इसको हम आज जो है डिफाइन कर दें और लिमिट कर दें, उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया ताकि नीड ऑफ द टाइम के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट इसकी वक्त की जरूरत के तहत बेहतरीन इसकी जो है डेफिनेशन दे और ऐसे इविल्स को, ऐसे क्राइम्स को रोके। यही हमारे यानी दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती, ब्यूटी भी इसी डिफाइन न करने में ही हमको नजर आती है। समझा पाई मैं आपको आर्टिकल 17 अब? यस मैडम। Yes, ma'am. ओके, आर्टिकल 18 देखते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल 18 स्पीक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो आपको याद है इंडिपेंडेंस से पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में, है कि नहीं? प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय होम, किंग्स, क्वींस एटसेट्रा। यस, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इंडिपेंडेंस आने से पहले दे वर प्रिंसली स्टेट्स लाइक which were ruled by kings and queens. और उनको कैसे टाइटल्स दिए जाते थे? महाराजा, राजा एटसेट्रा। यस और नो? उसी तरह लाइकवाइज वी आल्सो हैड जमींदारी सिस्टम, फेमस जमींदारी सिस्टम। यस और नो? जमींदारी सिस्टम में फिर वहां पे जमींदार का टाइटल दिया गया। यस, तो दीज इस तरह के टाइटल्स वर एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 18। अब किसी को जमींदार नहीं बुलाया जाएगा, यानी ये खुद अपने आप में एक स्पेशल ट्रीटमेंट का सवाल करता है कि नहीं? यानी खुद अपने आप डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली ला देगा सोसाइटी में। ऐसे अगर टाइटल से किसी को बुलाया जाए, ऐसे टाइटल्स के बेसिस पे किसी को खास दे दी जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी प्रिवेल करेगी। इसीलिए इन तमाम टाइटल्स को आर्टिकल 18 के तहत एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट एजुकेशनल टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स। ये आज भी प्रैक्टिस में है, ठीक है। एजुकेशनल टाइटल्स आप पूछ सकते हैं, मैम एजुकेशनल टाइटल्स क्या है? जैसे डॉक्टर हो गया, है कि नहीं? डॉक्टर तो मेडिकल डॉक्टर भी हो गया और एक पीएचडी करने वाले को भी हम डॉक्टर कह के पुकारते हैं। ये वैलिड है कि नहीं है? तो एजुकेशनल टाइटल्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी नहीं लाते हैं, तो दीज आर स्टिल allowed. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. So उसी तरह मिलिट्री टाइटल्स हो गए, आर्मी टाइटल्स जैसे हो गए, क्या है वो? आर्मी टाइटल्स आर लाइक लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह। यस, ठीक है। लेकिन आप मुझसे सवाल कर सकते थे कि पद्म भूषण, भारत रत्न, क्या इन टाइटल्स को भी यूज किया जा सकता है? No, ma'am, no. नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंटेशन के हद तक, गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स के हद तक नहीं यूज किया जा सकता है। इसको लेकर हम कोई स्पेशल जो है ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट यूजिंग दिस टाइटल्स, बट रिजर्वेशन इज गिवन और कुछ ज्यादा इनको यानी इंपॉर्टेंस देना आउट ऑफ रेस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन लीगली नहीं हो सकता, ठीक है। So all types of titles are abolished by Article 18, except educational and military titles, army titles. ठीक है? Only these two titles are allowed. अभी क्लास में अभी आशीष आए हैं क्लास को। आशीष, आप हैं यहाँ पर? रिकनेक्ट हुआ मैम अभी। आशीष? जी मैम, रिकनेक्ट हुआ। नहीं, मैंने अभी आपको एडमिट किया क्लास के अंदर। मैंने ही आपको एडमिट किया क्लास के अंदर। आर्टिकल 14 से स्टार्ट करे तब से हूँ मैं। फिर अभी कैसे आप मतलब बीच में Let चले me गए थे clarify. Actually, there was continuous disturbance from his mic. We've been repeatedly hard muting him, but then still he's keeping his mic open while you're speaking. So he was put in the waiting room. ओके, ठीक है। आशीष, आप क्लास पूरी सुने?
जी जी मैम। ओके, समझ Please आया? keep your आज mic. का सारा कुछ समझ आया आपको? जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, कल पढ़ के आइएगा, मैं जरूर पूछूंगी आप जी सबसे मैम। ही, ठीक है? ओके, तो ये था आर्टिकल 18। अब हम जाएंगे आर्टिकल 19। दूसरा हमने अब तक क्या डिस्कस किया? राइट टू इक्वालिटी। यस, पहला राइट। 6 राइट्स में हमने एक राइट डिस्कस किया, राइट टू इक्वालिटी, विच वाज डिस्कस फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। यस, तो अब हम दूसरा राइट पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज डिस्कस अंडर आर्टिकल 19 टू 22। फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 we shall discuss right to freedom. ठीक है? अंडर आर्टिकल 19 अगेन, आर्टिकल 19 अगर ले लें, इसके अंदर 6 फ्रीडम्स आर गारंटीड। ठीक है? राइट टू फ्रीडम is the basic fundamental right, and which is dealt from article 19 to article 22. Now if we discuss each article, article 19 itself is again guaranteeing 6 types of freedom. Okay, now please note down the 6 freedoms guaranteed under article 19 are freedom of speech and expression. Okay, now let's discuss each also. Freedom of speech and expression includes freedom of silence also. Okay, everyone is free to express their opinion or not in India. Tell me, we are? Yes, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. हमको अपनी ओपिनियन रखने की आजादी है कि नहीं है? चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो किसी आर्टिकल के तहत हो, न्यूज़पेपर के तहत हो, मीडिया के तहत हो, किसी भी तरह से हमने अपनी ओपिनियन रखने की हमको आजादी है कि नहीं है? है मैम। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन याद रखें, ये फ्रीडम जो है एक लिमिटेशन के साथ आती है। जस्ट बिकॉज यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोलते जा सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, राइट? जैसे आज हेट स्पीचेस के ऊपर रोक लगाने की बात आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही एडवांटेज लेकर किसी दूसरी कम्युनिटी को हमने इतना उसके बारे में बुरा प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में, तो आज इन हेट स्पीचेस के ऊपर रोक लगाने की बात आ रही है। यस और नो? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपको है, लेकिन आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? हेलो? No. No, you cannot defame somebody under the pretext of right to freedom of expression and speech. You may criticize, but that criticism should be healthy criticism. आपको याद रखना होगा कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर किसी को क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हो। वो गवर्नमेंट का एक्ट हो सकता है, किसी कम्युनिटी का बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म हेल्दी क्रिटिसिज्म होगा, ना कि पर्सनल ग्रज निकालने के लिए। ठीक है? इसी तरह आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समझा पाई मैं आपको ये? यस, ओके। उसके बाद आपने ये गौर करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने साथ फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी लाता है। ठीक है? खामोश रहने की भी आजादी आपको है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर्स को ले लें। ठीक है? आप डॉक्टर्स को हरगिज ही फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपने पेशेंट्स का डेटा आपके सामने रखें अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय स्पेशल प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है? यस और नो? यस मैम। कैन यू क्या कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स की डिटेल्स किसी को भी दे सकता है कि उसने क्या ट्रीटमेंट उसके पास करवाया, किस बीमारी को लेकर वो आया था ट्रीटमेंट के लिए? क्या वो सबको बता सकता है कि इस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी? नहीं मैडम, इट्स अगेंस्ट प्राइवेसी। यस, लेकिन अंडर स्पेशल प्रोविजंस अगर कोर्ट मांगे, जरूरत पड़े, कोर्ट को लगता है कि कोई मामला इस डेटा के बगैर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो मांग कर सकती है, स्पेशल डायरेक्शंस दे सकती है। ठीक है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंदर राइट टू
be silent or freedom of silence also is included. ठीक है? Did you get me? Yes, ma'am. Okay. So now remember, freedom of speech and expression includes social media, press also. Okay. It can be expressed through press, through social media, etc. Okay. Then second freedom under Article 19 is freedom of peaceful assembly. अब हम यहाँ पर assemble हुए हैं, हमको आजादी है कि नहीं है इस तरह से असेंबली करने की, जमा होने की? असेंबली का मतलब जमा होना। कोई भी कितने भी नंबर में किसी जगह जमा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए जमा हो सकता है, पॉलिटिकल रैलीज निकालने के लिए जमा हो सकता है, किसी भी तरह जमा हो सकता है। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बहुत ज्यादा नंबर में? हो सकते हैं। have freedom of assembly, but that assembly should be peaceful assembly. ठीक है? Without arms. आप हथियार कैरी नहीं कर सकते हो इस असेंबली में। ठीक है? आप असेंबल तो हो सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो सकते हो, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आप हथियार कैरी नहीं करेंगे। ये असेंबली पीसफुल असेंबली ही हो सकती है, वरना आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। उसी तरह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी आप n नंबर ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो। आज हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कई एनजीओ देखते हैं, है कि नहीं? एनजीओ कुछ नहीं बल्कि एक एसोसिएशन है ना? उसी तरह हम व्हाट इज इट कॉल्ड, एंटरटेनमेंट के लिए भी, रिक्रिएशन के लिए भी एसोसिएशन बना सकते हैं, है कि नहीं? स्पोर्ट्स के लिए भी एसोसिएशंस बना सकते हैं, एनजीओज बना, सोशल वर्क के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं। तो यू ऑलवेज हैव अ फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। आप चाहे एजुकेटेड हो ना हो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यू स्टिल हैव द फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। ठीक है? उसी तरह यू हैव अनदर फ्रीडम कॉल्ड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में फ्रीली मूव कर सकते हो कि नहीं मूव कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। क्या उसके लिए फिर आपको वीजा लगाना होगा? नहीं। पासपोर्ट और एक होना चाहिए? नहीं मैम। हाँ। तो फ्री मूवमेंट आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं है? ये फ्री मूवमेंट हमको मिला है आर्टिकल 19 के अंदर। हम इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी स्टेट, किसी भी प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस ना हो। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो मैं किसी के भी घर में दाखिल हो जाऊंगा, किसी के गार्डन एरिया में चला जाऊंगा। जा सकते हो ऐसा? नहीं जा सकते। हाँ। इंदिरा पार्क में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हैं। जा सकते हो। ठीक है? अफसर जहान के घर में आ सकते हो? नहीं जा सकते। क्या फर्क है? दावत देके इनवाइट करो तो आ सकते हैं मैडम। हाँ, क्या कर सकते हैं? दावत ही तो आ सकते हो इंशाल्लाह। बस वहां जरूर देंगे दावत आपको। ठीक है? तो वही मतलब हुआ कि हम पब्लिक प्लेस में कहीं भी फ्रीली थ्रू आउट इंडिया मूव कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जगह नहीं, क्योंकि वो ट्रेसपास हो जाएगा, वो एक क्राइम हो जाएगा, है ना? उसकी इजाजत के बगैर आप दाखिल नहीं हो सकते, उसकी दावत के बगैर किसी भी प्राइवेट पर्सन के प्रेमिसेस में आप दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन गवर्नमेंट यानी सॉरी पब्लिक प्लेसेस में आप कहीं भी जा सकते हो। ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है? आप थ्रू आउट इंडिया विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा घूम सकते हो किसी भी स्टेट को। किसी भी आधी रात को उठ के आप ट्रेन की टिकट कटवाएं और चले जाएं। यस और नो? यस मैम। यस मैडम। यस। ओके। अब मतलब क्या इतना आहिस्ता से बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि कहाँ टिकट कटवाऊं? हाँ? ओके। So then you also have freedom of residence under Article 19. ठीक है? Except scheduled areas और previously यानी scheduled areas जैसे यानी आप ये देख लेना, जम्मू एंड कश्मीर में पहले आप रेसिडेंस नहीं ले सकते थे, आप जाकर वहां सेटल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप इंडिया के हर किसी भी स्टेट में, जैसे हमने मूवमेंट की अभी बात की, कहीं भी जाकर आप जो है वहां पर रिहाइश कर सकते हो। यस और नो? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है। आप प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में खरीद लो कल
और आप जाके अगले महीने से वहां रहना लगो, या इसी हफ्ते आप मूव कर जाओ, आप किसी भी स्टेट में जाके टेनेंट बन जाओ, किसी भी स्टेट में आप एक घर टेनेंसी पर लेकर आप वहां रह सकते हो, रेंट पर लेके रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। उसी तरह आप शॉप खोल सकते हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हम पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन अब इस पर भी रिलैक्सेशन आ गई है। अब हम वहां पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ then again the last freedom guaranteed under article 19 is freedom of profession and trade. अब देखें, according to this every citizen can practice the profession of his choice. क्या आपको रोक दें हम कि आप नहीं, आपने तमाम ने सिर्फ एडवोकेसी ही करनी है, डॉक्टर नहीं बनना है? क्या रोक सकते हैं कोई भी? यानी गवर्नमेंट क्या कोई कानून बना सकती है आप पर कि नहीं, इंडिया के इतने लोग यानी सिर्फ डॉक्टर्स ही बनना है, या इंजीनियर्स ही बनना है, या टीचर्स ही बनना है? नहीं ना, आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन। और उसी तरह ट्रेड भी, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो, है कि नहीं? आप कपड़ा बेच सकते हो, आप इंडस्ट्री डाल सकते हो, आप होटल चला सकते हो। yes or no? You can practice any profession, you can carry any business. This is called freedom of profession and trade, but this also is with certain exception. ठीक है, इसके ऊपर भी reasonable restriction है। just because आप ट्रेड कर सकते हो, आप क्या स्मगलिंग भी कर सकते हो? बताएं। No, madam. ना? So there is reasonable restriction on you can practice a profession and trade as long as it does not affect the morality of the society or security of the nation. ठीक है, अगर आप ऐसा बिजनेस करने लगे, ट्रेड करने लगे, जैसा स्मगल करने लगे, कुछ हथियार स्मगल करने लगे, ये नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट है कि नहीं है? तो क्या आप बोल सकते हो कल अगर पकड़े गए तो बोलोगे क्या मुझे तो जो है ट्रेड करने की राइट मिलती है, फंडामेंटल राइट है, मेरा फ्रीडम है, फ्रीडम टू ट्रेड है, तो मैं हथियार भी इसकी भी जो है ट्रेड कर सकता हूँ? क्या हथियार भी स्मगल कर सकता हूँ, गोल्ड स्मगल कर सकता हूँ? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज योर ट्रेड इज नॉट अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, you can carry on any kind of trade. उसी तरह प्रोफेशन को भी लेकर अगर ये मोरालिटी को अफेक्ट नहीं करती है सोसाइटी की, तो आप किसी भी तरह का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए कुछ प्रोफेशंस आजकल नए आए हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, है कि नहीं? पहले ये नहीं था, अब है। as far as it is not affecting the morality, you can do. Yes or no? समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं प्रैक्टिस करना जो सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज को डिस्टर्ब करे, ठीक है? ओके, नाउ इफ स्टेट कंसीडर्स, उसी तरह ट्रेड का जैसा अभी मैंने बताया सिक्योरिटी ऑफ नेशन को लेकर, उसी तरह एक और एस्पेक्ट है इसका। आप उन कमोडिटीज में भी ट्रेड नहीं कर सकते जिसको गवर्नमेंट ने, स्टेट ने एसेंशियल गुड डिक्लेयर कर दिया हो और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो वो प्रोडक्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे रेलवे हो गया, हाँ पेट्रोल हो गया, राइट? पेट्रोल हो गया, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो इसकी कीमतें आसमान को छू ले, है ना? फिर हम पेट्रोल नहीं, हम साइकिलिंग ही करते होते, कोई गाड़ी नहीं चला पाती, है कि नहीं? तो इसीलिए इस तरह के वेरी नाइस एग्जाम्पल यू गिव। पेट्रोल एक इजीएस्ट एग्जाम्पल है, ये एक एसेंशियल गुड है, इसकी मोनोपोली किसकी होगी? बेहतरीन क्या है कि गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल हो, गवर्नमेंट और स्टेट का इस पे कंट्रोल होना पब्लिक वेलफेयर के इंटरेस्ट में है कि नहीं? वही अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ये पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ हो जाएगा, इसके पब्लिक वेलफेयर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो ट्रेड करते वक्त इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। Am I clear? Yes, madam. Okay. So government can control any product when it feels that the product or the good is
of a nature of essential commodity or of public importance, then it can create its monopoly over it, control over it, and can exclude absolutely the private sector. ठीक है? अभी कोई क्लास में अफान आए, राइट? अफान, आप अभी आए हैं ना क्लास में? Yes or no? अफान अनम्यूट करके बात करिए। इस वक्त आप अगर खामोश बैठेंगे और इस वक्त आप 8 बजे जब क्लास खत्म होती है आप आएंगे तो क्या सुनने के लिए आए हैं अफान? Again, this is a warning for everyone. Please be on time. Take this notice important. It's high time that your examinations are nearing. And I request my admin team to, जो जैसा हमने decide किया था, कि please keep a track of the people, students present, mark their attendance. ये list हमारे पास होनी चाहिए. जब result आए, let's see कि कितने regular रहे हैं, what is the result they have given to us. We are not concerned about who did not turn up. So please keep an track with the attendance, their punctuality and regularity. Okay. ठीक है class. So we have discussed article. We have just started right to freedom now. बाकी के सारे we shall discuss in the coming classes, inshallah. ठीक है. Are you all clear till here? Any doubts as far as the topics discussed today? Yes, मैडम एक क्वेश्चन था, ये जो राइट टू फ्रीडम है ये इमरजेंसी में भी हटा नहीं सकते ना मैडम? नहीं, it can be suspended. In fact हमने कहा था ना कि president has the power to suspend all the fundamental rights except article 20 and 21. अच्छा, ओके, एक्सेप्ट 20 and 21. रिमेंबर ये हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स. यस मैडम. इवन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते वक्त. Yes मैडम. I pointed out there that during emergency the president has the power to suspend the fundamental rights as long as the emergency prevails. Except article 20 and 21. This cannot be suspended even during the time of emergency. ठीक है? Yes, madam. Thank you. Any more doubts? हुस्ना, आपको समझ आई आज सारी क्लास? जी हाँ, अभी आपने सारी चीजें बतलाई आजादी के बारे में, जैसे कि मजमू जमा कर सकते हैं और कोई भी कारोबार कर सकते हैं. अंडर 19 आती है मैम? हाँ, अंडर 19 आती है. अंडर 19 6 फ्रीडम्स हैं. एक बात सब लिख लें, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरह सिर्फ आर्टिकल 19 ही जो है, फिर उसके अंदर हमको 6 और फ्रीडम्स मिलते हैं. दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, forming association, freedom of movement, freedom of residence, and freedom of profession and trade. ठीक है? Okay class, I hope सबको बात समझ आई, सबको आज सब्जेक्ट समझ आया, सबको टॉपिक समझ में आया. कल मैं जरूर एक क्विक रिकैप लेते हुए आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह. कल है हमारी क्लास, डे आफ्टर टुमारो. ठीक है? यहाँ तक देखें, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर. इसीलिए मैं आपको आराम से बहुत डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो प्लीज, उम्मीद है आप सब पढ़कर आएंगे. आर्टिकल 12 से पढ़कर आए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 19 तक अच्छे से पढ़कर आए. हाँ सफा, क्या है आपका सवाल? क्या पूछना चाहते हैं आप? सफा, सफा, कैन यू हियर मी? आपने हाथ रेज किया है ना, यू हैव रेज्ड योर हैंड. बताएं आपका क्या सवाल है.
What is the meaning of doctrine? सफा क्या डॉक्ट्रिन का मतलब आप पूछ रहे हैं? डॉक्ट्रिन इज लाइक क्या कहेंगे डॉक्ट्रिन को बताएं? एक थ्योरी समझे। डॉक्ट्रिन का मतलब आप आसान जबान में ठीक है, बट कैन यू हियर अस सफा, कैन यू हियर अस? डॉक्ट्रिन कैन बी ट्रीटेड एज अ थ्योरी, एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? आई होप आई हैव आंसर्ड यू। रिप्लाई okay, did you understand it? Okay, thank you. Anything else? अब मैं 1-2 मिनट और यहाँ पर हूँ, आप लोग बताएं। If you have any doubts, you can still clarify with me. I'll stay back for another 2 minutes over here. Madam, is there any better way to remember these articles? Not now, like in future as well, because 395 articles है, so is there any better way to remember these articles, or like हमको हर हमेशा मतलब रेफर करना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल क्या डिफाइन करता है? Tell me, the practice of advocacy is evolving or it is defined? It's defined, man. It's defined. It's not defined. It's always evolving. आपको throughout life हमने orientation में कहा पढ़ते रहना होगा। 395 articles आप as such याद नहीं रख सकते हैं। इंशाल्लाह अगर शायद अल्लाह किसी को दे तो याद रखें। Otherwise you always refer it. See, when you practice, it automatically comes, right? You keep practicing, you keep learning, you keep remembering, you keep recollecting, and that is the way you will remember and get to know, remember all these things. Okay? Yes, Anwar. Yes, madam. Madam, एक सवाल था मैडम। मैडम जो वो आप प्रेसिडेंट को मतलब सिविल उससे प्रोसीड करते बोले ना, इसका कोई एग्जाम्पल है मैडम? ऐसा कुछ प्रेसिडेंट कुछ गलती करा उसके ऊपर? गलती करा नहीं, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अगर किसी बैंक को लोन देना वापस हो, एक रकम देनी वापस हो, उसके ऊपर फाइन लग रहा हो, इंटरेस्ट लग रहा हो, तो फिर दिस इज अ सिविल मैटर, यस और नो? तो उस तरह से इट कैन बी इनिशिएटेड। आपने कंपेंसेशन उन पे लगा सकते हो आप, yes or no? Yes, madam. Okay. Is that clear now? Any more doubts? So may I? Yeah. मैम आर्टिकल 12 और 13 फिर भी समझ में नहीं आया मैम। आर्टिकल 12 और 13 मैम। 13 आर्टिकल 12 यूनुस सिर्फ स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट क्या है डिफाइन करता है, किसको हम स्टेट मानेंगे, किसको हम गवर्नमेंट मानेंगे, ठीक है? जी मैम। उसमें है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज, लेजिस्लेचर सेंटर का और स्टेट का भी, एग्जीक्यूटिव सेंटर का और स्टेट का भी, जैसा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज हो गए, पंचायत राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनको आप स्टेट मान सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अदर अथॉरिटीज हैं, ओजीसी, ये सारे हमने केसेस में डिस्कस किए किन किन को हम मान सकते हैं। जहां कहीं स्टेट का ज्यादा कंट्रोल हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट की मोनोपोली हो, सिर्फ स्टेट ही चलाता हो, रूल्स फ्रेम करता हो, एग्जीक्यूट भी करता हो, पनिश भी करता हो, ये सब कुछ अगर ज्यादातर पावर स्टेट के हाथ में है उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको स्टेट कह सकते हैं। ऐसे पैरामीटर हमने पढ़े थे। दिस इज आर्टिकल 12, ठीक है? जी मैम। ओके। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू का पावर है। सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना दे अगर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, तो उस लॉ, उस कानून को अल्ट्रा वायरस, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 13। समझा पाई मैं आपको? अब नहीं समझे? यूनुस? समझ गया मैम। 12 and 13, आर्टिकल 12 and 13 समझ गया मैम। ओके। आर्टिकल 13 है कि कोई भी लॉ, एनी लॉ विच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। बहुत सिंपल सी लाइन, ठीक है? राइट। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।
मैम आर्टिकल 19 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है क्या? सॉरी, क्या पूछे आप उसे? आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 पे, हाँ, फिर हमने जब से क्या रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस किए, फ्रीडम ऑफ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ऐसा ट्रेड ना करो जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। यानी आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस आप करो, हर फ्रीडम जो है एक रेस्ट्रिक्शन के साथ आती है। अगर असेंबली कर रहे हो तो आप पीसफुल असेंबली करो, आर्म्स ना कैरी करो। ये असेंबली तो आप कर सकते हैं लेकिन हथियार कैरी नहीं कर सकते। हथियार कैरी ना करना एक रेस्ट्रिक्शन है। उसी तरह एसोसिएशन आप बना सकते हो किसी भी तरह का, आप आजादी से घूम फिर सकते हो, ठीक है, कहीं भी, लेकिन आप पब्लिक प्लेसेस को जा सकते हो, प्राइवेट प्लेस में नहीं जा सकते। ये एक रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट पर। उसी तरह रेसिडेंस, आप कहीं, क्या सवाल है आपका? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का रेस्ट्रिक्शन क्या था मैम? फ्रीडम एसोसिएशन इलीगल ना हो ना, कोई एसोसिएशन ऐसा ना बनाओ जो आप एक एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हो और फिर स्टेट की यानी ये प्लानिंग कर रहे हो, उस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए गैर कानूनी तरीके से, या फिर आप राइट्स करने के लिए आप एक एसोसिएशन बना रहे हो, इस तरह की है ना। नक्सलवादियों की एसोसिएशन, क्या वो जायज है? नहीं। समझ आई अब आपको बात? आप ये सारे जी, फ्रीडम हाँ। एंजॉय कर सकते हो लेकिन वो इलीगल ना हो, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ये खुद एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जी मैम, जज़ाकल्लाह। Okay, any more doubts? May I take leave now? Okay, thank you so much class. Have a nice day. Inshallah we shall. Thank you very much, madam. Thank you very much, madam.